Good morning to all of you. So, after the year 2 exam, now we will start with our new chapter, that is chapter 12, Age of Exploration. In this chapter, you people will come to know about the different European explorers and discoveries of new sea routes. Okay, so here exploration means research karna, to search something, okay, to find something, vestige. And explorer means who research the things, okay, researcher. So let us start with the chapter. In this chapter, you people will come to know about these brave explorers. These are the European explorers, okay, Bartholomew Dias, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus, and Vasco da Gama. Okay, so let's start with the chapter. Europe went through many changes in the 15th and the 16th centuries. People were curious about new places and wanted to visit these far away lands. So Europe went through many changes. Okay, this is the story about the Europeans, that Europe went through many changes in between the time 15th and the 16th century. Okay, and the people were curious about, and the people of Europe were very curious, very eager to know new places and to come to know about the new things, and they wanted to visit these far away lands. Some wanted to discover new lands. Some Europeans were very eager to find out other new lands. Some were looking for new and faster routes to the cotton and the spice markets of the east. Some people were very eager, okay, very curious to know about the new and the faster route, okay, short way to the cotton and spice markets. Okay, cotton और spice की जो markets थी वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ लोग जो थे वो क्या थे, बहुत ही eager थे नए नए रास्ते find करने के लिए. These spices were produced in India. और ये spices कहाँ पे produce होते थे? You know, India is also known as the land of spices. ठीक है, सो ये सारे स्पाइसेस जो थे वो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते थे. देन श्रीलंका, देन नॉन एज सिलोन. Okay, the name of the Sri Lanka in ancient time was Ceylon, and the Moluccas or the Maluku Islands, which were earlier known as the Spice Islands. Okay, so these were the Spice Islands. Earlier the name of these places was Spice Islands. The age of exploration means the time of exploration, research. Okay, was the period. कौन सा टाइम था वो? इट वॉज द टाइम पीरियड व्हेन द यूरोपियंस बिगेन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड बाय सी ट्रैवल्स इन सर्च ऑफ न्यू ट्रेडिंग रूट्स, वेल्थ एंड नॉलेज. सो दिस टाइम वॉज, कौन सा टाइम था ये? द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन. ये कौन सा टाइम था? व्हेन द यूरोपियन बिगेन टू एक्सप्लोर, दे स्टार्टेड टू सर्च द वर्ल्ड बाय, कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया सर्च करना? बाय ट्रैवल इन सर्च ऑफ न्यू ट्रेडिंग रूट्स. ओके, सी ट्रैवल्स, सी से होके उन्होंने ट्रैवलिंग करना शुरू की न्यू ट्रेड के लिए, न्यू बिजनेस के लिए, बिजनेस रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, वेल्थ और टू गेन द नॉलेज ऑल्सो. So let us learn about some of these brave explorers. So now one by one we will read some of these explorers. First is Bartholomew Dias. Okay, Bartholomew Dias. This is the date of birth and the death date of his 1415 CE to 1500 CE. Bartholomew Dias was a Portuguese explorer. So he was a Portuguese explorer. He was a knight. Knight means he was on a rank of knight. ओके, एट द कोर्ट ऑफ किंग जॉन सेकंड ऑफ पुर्तगाल. जो पुर्तगाल के राजा थे जॉन सेकंड, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में वो क्या था? एक सोल्जर था. ओके, हाई रैंक पे था, नाइट था. Bartholomew Dias was the first European. He was the first European to sail around the southern tip of America in 1488. So वो पहला यूरोपियन था जिसने टू सेल अराउंड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका की सदर्न साइड जो थी उन्होंने सेल किया, वहाँ पे विजिट किया, घूमे वो
and opening the sea route to Asia via the Atlantic and the Indian Ocean. And he was the first who opened the route to Asia. एशिया में आने के लिए जो उसने नया रूट जो था वो सर्च किया, कहाँ से? बाय द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में से होके, अटलांटिक ओशन में से होके बार्टोलोमेव डाइस जो थे उन्होंने एक रूट जो था वो निकाला. डाइस डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप. ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ये प्लेस केप ऑफ गुड होप जो थी उसको खोजा था, डिस्कवर की थी. केप बच्चे ए लार्ज पीस ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू अ बॉडी ऑफ वाटर. केप होती है एक बड़ा सा पीस होता है लैंड का जो कि वाटर में एक्सटेंड होता है, ठीक है, वाटर में फैला होता है, ठीक है. तो उन्होंने केप ऑफ गुड होप जो नाम है उस केप का, इन्होंने इसको सर्च किया था, विच ही ओरिजिनली नेम्ड एज द केप ऑफ स्टॉर्म. ठीक है, ओरिजिनली जब उन्होंने इसको सर्च किया था तो उन्होंने उसका नाम जो था वो केप ऑफ स्टॉर्म जो था उसको दिया था. लेकिन बाद में लेटर किंग जॉन सेकंड जो उसके राजा थे, जिनके कोर्ट में वो नाइट की ड्यूटी करते थे, उस राजा ने, जो किंग जॉन सेकंड थे, उसका नाम बदल दिया, रीनेम्ड इट एज द केप ऑफ गुड होप. तो उन्होंने इसका नाम केप ऑफ गुड होप रख दिया. एज इट मार्क द ओपनिंग ऑफ अ न्यू रूट टू द ईस्ट. अब इसका नाम इंस्टेड ऑफ केप ऑफ स्टॉर्म से केप ऑफ गुड होप क्यों रख दिया? क्योंकि इसके सर्च के बाद जो था नए रूट जो थे ईस्ट के लिए सामने आए थे. विद द ओपनिंग ऑफ दिस न्यू सी रूट, इस सी रूट की ओपन होने से यूरोपियंस कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका. अब यूरोपियन जो थे वो ईस्ट अफ्रीका के साथ डायरेक्टली जाके बिजनेस कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते थे. सो इंडिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया बाय पासिंग द लैंड रूट्स ऑफ द मिडल ईस्ट. ओके, सो यूरोपियन कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया. इस जो केप ऑफ गुड होप थी, इसके खोज करने के बाद यूरोपियन को एक नया रूट मिल गया ईस्ट की साइड, और इस नए सी रूट को ओपन होते ही यूरोपियन जो थे अब डायरेक्ट जो है वो कहाँ जाके ट्रेड कर सकते थे विद ईस्ट अफ्रीका, इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया. ओके, बाय पासिंग द लैंड रूट्स ऑफ द मिडल ईस्ट की लैंड रूट को पास करके. नेक्स्ट ग्रेट एक्सप्लोरर इज फर्डिनेंड मैगेलन. Ferdinand Magellan was a Portuguese, he was also a Portuguese born explorer and navigator. Navigator means sailor who undertook sailing expedition on behalf of Spain. Expedition होते हैं campaign, ठीक है, जो हम campaign एक अभियान शुरू करते हैं, ठीक है. तो वो उन्होंने जो स्पेन की ओर से अपना ये कैंपेन जो था वो शुरू किया था. इन 1519 CE Magellan set out to sail around the world with 5 ships. Okay, so in 1519 he started his journey, and during that time he started his journey with 5 ships. 5 ships के साथ उसने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी. He sailed south across the Atlantic and in November 1520 into the Pacific Ocean through the state that is now named after him, State of Magellan. तो उन्होंने साउथ की ओर सेल किया, जर्नी की अपनी, ठीक है, अटलांटिक से होके गए और नवंबर 1520 में वो पैसिफिक ओशियन से होके गए थ्रू द स्टेट. ओके, स्टेट होती है नारो बॉडी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी नहीं होता है उसमें. ओके, एंड दैट कॉन्टेक्ट 2 लार्जर वाटर बॉडीज, और उसके कारण 2 बड़ी वाटर बॉडी जो आपको समय आके मिलती हैं उसको बोलते हैं स्टेट. तो वहाँ से होके उन्होंने अपनी जो थी जर्नी की थी, और उस स्टेट का नाम जो था वो उनके नाम के पर पड़ गया था, स्टेट ऑफ मैगेलन. मैगेलन वॉज एबल टू रीच ओनली टिल द फिलीपाइंस वेयर ही वॉज किल्ड इन अ बैटल विद नेटिव्स. ओके, मैगेलन बाद जो थे उन्होंने जर्नी तो स्टार्ट की थी, लेकिन वो अभी रीच ओनली टिल द फिलीपाइंस तक ही वो पहुंच पाए थे, जहाँ पे उनको एक वॉर वहाँ पे हुआ विद द नेटिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है, नेटिव होते हैं लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री, एरिया, सिटी सिंस बर्थ, लाइक वी आर द नेटिव ऑफ इंडिया, कि हम अपने बर्थ से यहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे भी फिलीपाइंस के जो नेटिव थे उनके साथ उनका वॉर हुआ और मैगेलन की उसमें डेथ हो गई. हिज डिप्टी जॉन सेबेस्टियन
Elcano returned to Spain with huge quantities of cloves, but with only one ship. Now you know that they started their journey with the 5 ships. 5 ships के साथ उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, and so other crew member were also there. But at last his डिप्टी जॉन, उसके साथ जो एक डिप्टी जॉन थे नेम सेबेस्टियन एलेकानो, वो लास्ट में स्पेन वापस आए अपनी पूरी जर्नी को पूरी करके. एंड एट ड्यूरिंग दैट टाइम ही हैड विद हिम द क्वांटिटीज ऑफ क्लोव्स. क्लोव्स क्या होते हैं बेटा? लौंग को बोलते हैं, ठीक है. तो वो बहुत सारे लौंग अपने साथ लेके गए, क्लोव्स अपने साथ वो वहाँ पे लेके पहुँचे, लेकिन तब तक उनके साथ सिर्फ एक ही शिप था. दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये सबसे पहला जो था, दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल मीन्स कि कम से कम 5 में से एक शिप जो था वो वापस पूरी जर्नी करके जो था वो वापस अपनी जगह पे आया था. तो दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल सर्कम नेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड. सर्कम नेविगेशन मीन्स टू सेल अराउंड द अर्थ, पूरी अराउंड चक्कर का, अर्थ का चक्कर लगाना. मैगेलिन्स बॉयज होती है ट्रैवलिंग, बॉयज होती है जर्नी. Proved that the earth was round and gave an idea about the distribution of land and water on its surface. So after the journey of Magellan, okay, it was proved कि earth was not flat, it was round. Okay, जो अर्थ थी वो राउंड थी. न तो बिफोर दैट लोग क्या सोचते थे? दैट अर्थ was flat. But after his journey, it was proved that earth was round, and also this also given an idea that about the distribution of land and water on its surface. और इससे भी ये पता चला कि अर्थ के सरफेस पे कितनी लैंड है और कितना पानी है. So it is enough for today. Next we will discuss in our next class. Thank you so much.